لیکن ہیڈلائنز آپ نے جانی، آپ کو بتائیں صوبائی دارالحکومت میں صبح سویرے ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار، شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان، فضائی آلودگی میں نمایاں کمی آنے لگی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں مبین حیدر سے۔ مبین بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں موسم کے حوالے سے؟ بالکل، اگر شہر لاہور کے موسم کی بات کریں تو موسم تو کنسسٹنسی کے ساتھ جو ہے وہ سردی کی طرف گامزن ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس موسم کے اندر آہستہ آہستہ اسموگ کا ملاب بھی جو ہے وہ سامنے آتا جا رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ روز کے اندر اسموگ کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، اب اس میں جو ہلکی بہتری بھی سامنے آ رہی ہے۔ کل تک جو ایئر کوالٹی انڈیکس جو وہ 260 یا 70 کی اوسط پہ ریکارڈ کیا جا رہا تھا، آج جو لاہور کی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 240 اوسط جو ہے اس کی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ بہت کم نہیں ہے لیکن قدرے بہتر ہے گزشتہ روز سے، یعنی کہ جو حکومت کی طرف سے جو SOPs اختیار کیے جا رہے ہیں وہ کسی قدر جو وہ کسی حد تک سود مند بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں موسم میں درجہ حرارت کی، تو درجہ حرارت جو کم سے کم 19 کے زیادہ جو ہے وہ دوپہر کے اوقات تک 32 ڈگری تک پیک کرنے کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ آپ کو اگر موجودہ درجہ حرارت کی بات کریں تو موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 22 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بارش کے بھی کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں بھی بارش کے برسنے کے امکان نہیں ہے۔ خشک موسم اس طرح جاری رہے گا جب تک موسم خشک ہے۔ کوشش کریں کہ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، SOPs پر عمل زیادہ سے زیادہ کریں، جو ہے واٹر انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں تاکہ جو بدلتے موسم کے اسموگ کے منفی اثرات ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں۔ جی شکریہ مبین آپ کا۔ عوام کے لیے خوشخبری، مرغی کا گوشت مزید سستا ہو گیا۔ برائلر گوشت 8 روپے سستا، فی کلو قیمت 395 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈے 1 روپیہ مہنگے، فی درجن قیمت 326 روپے مقرر ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، عوام کے لیے خوشخبری کی یہ خبر ہے، مرغی کا گوشت مزید سستا ہو گیا ہے۔ برائلر گوشت 8 روپے سستا، فی کلو قیمت 395 روپے ہو گئی ہے۔ فارمی انڈے 1 روپیہ مہنگے، فی درجن قیمت 326 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ عوام کے لیے خوشخبری، مرغی کا گوشت مزید سستا ہو گیا ہے۔ برائلر گوشت 8 روپے سستا، فی کلو قیمت 395 روپے ہو گئی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عبدالقادر بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقطہ میں جاری کیا گیا اس میں برائلر کی قیمتوں میں کمی کا رجحان جو ہے وہ برقرار ہے، اور آج بھی مزید جو ہے وہ کمی کی گئی ہے۔ 8 روپے فی کلو تک برائلر گوشت سستا کیا گیا ہے۔ سرکاری ریلیز میں برائلر گوشت کی قیمت 395 روپے فی کلو کی سطح پر مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح مارکیٹ میں صافی برائلر جو ہے 450 سے 480 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 5 روپے تک کمی ہوئی ہے۔ فارم گیٹ ریٹ زندہ برائلر کا آج 245، ہول سیل زندہ برائلر 259، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت جو ہے 273 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ تاہم دوسری جانب انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر یہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آج مزید 1 روپیہ بڑھا کر 326 روپے فی درجن سرکاری نقل نامے میں قیمت مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں جو انڈے ہیں وہ شہریوں کو مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں سرکاری ریلیزوں کے برعکس۔ ہول سیل مارکیٹ کے لیے انڈوں کی پیٹی 9660 روپے کی سرکاری ریلیز میں مقرر کی گئی، لیکن یہ بھی ہول سیل مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پرچون بازاروں میں شہریوں کو جو انڈے ہیں وہ مہنگے داموں خریدنا پڑ رہے ہیں۔ اگر برائلر کی قیمتوں پر بات کی جائے تو برائلر کی سپلائی بہتر ہونے کی وجہ سے قیمتوں میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جی شکریہ عبدالقادر آپ کا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہونے کا امکان۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دسمبر میں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا شیڈول واپس لے لیا ہے۔ نے دسمبر میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا شیڈیول واپس لے لیا۔ پنجاب حکومت کو مزید 4 ہفتوں کی مہلت۔ کمیشن نے پنجاب بلدیاتی انتخابات کی حلقہ بندیوں کا کام روک دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں ممبران کمیشن، سیکرٹری اور سینئر افسران نے شرکت کی۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر تفصیلی غور کیا گیا۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب اسمبلی نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 منظور کر لیا ہے۔ گورنر پنجاب نے بھی لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کی منظوری دے دی۔ نئے ایکٹ کے نفاذ کے ساتھ پنجاب لوکل گورنمنٹ
एक्ट 2022 मनसूख हो गया। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत कराने का फैसला कर लिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत दिया गया हल्का बंदी का शेड्यूल वापस लेने का भी फैसला किया गया। एलामिया में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स के लिए 4 हफ्ते दे दिए हैं। हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स के लिए दी गई मोहलत में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के पहले मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट का मुआयना भी किया। लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में पहली बार FIR के इंदराज की सहूलत भी होगी। मोबाइल यूनिट में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और तजदीद करवाने की सहूलत भी मुयसर होगी। वज़ीर आला पंजाब ने मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट की चाबियां मुतल्लिका अफसरान की सुपुर्द कर दी। मरियम नवाज ने मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट का मुआयना किया और स्टाफ से बातचीत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मोबाइल यूनिट की वर्किंग के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब की स्टाफ को अवाम के साथ हमदर्दाना रवैया अपनाने की हिदायत। मोबाइल पुलिस स्टेशन में लर्नर रेगुलर लाइसेंस, तजदीद इंटरनेशनल लाइसेंस और वुमेन लाइसेंसिंग की सहूलत होगी। मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट गर्ल्स एजुकेशन मराकज और वर्किंग वुमेन को सर्विसेज भी फराहम करेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने हर वादा बहुत थोड़े अरसे में पूरा किया। 15 अजला में सैलाबज़दगान को चेक्स की अदायगियाँ शुरू हो गईं। TLP रहनुमाओं की बेनामी जायदादों का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 33 मोबाइल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। इनमें पिंक स्टेशन भी हैं। अब दरखास्तें थानों में जाकर रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज एक और बहुत इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया है और वो इनोवेटिव इनिशिएटिव जो है वो 33 मोबाइल पुलिस स्टेशंस हैं। ये आप देख रहे हैं, ये 33 मोबाइल पुलिस स्टेशन हैं। जिस तरह से क्लिनिक ऑन व्हील्स थे और इसी तरह ये मोबाइल पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स हैं और इसके अंदर जो 7 जो है वो पिंक मोबाइल पुलिस स्टेशन हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि मुरीद के वाक़े में 3 अमवात हुई। हज़ारों लोगों के मरने की कहानियाँ घड़ी जा रही हैं। 17 पंजाब और रेस्क्यू की गाड़ियाँ तोड़ी गईं। 18 पुलिस एहलकार गोलियाँ लगने से जख्मी हुए। वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को ऐसे फसाद का ईंधन बनने से रोकें। मेरे पास पूरा डिटेल मौजूद है। सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला लाहौर था, जहाँ पे 122 एहलकार जख्मी हुए। 20 गाड़ियाँ जो है वो मुतासर हुई। 17 को जलाया गया और 3 अभी तक लापता हैं। जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो फाइनेंसर्स देख रहे हैं, जो आम पब्लिक देख रही है कि बराए मेहरबानी इनके फॉल्स प्रोपेगेंडा में और इनकी इश्तियाल अंगेजी में ना आए। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि TLP रहनुमाओं के घर से सोना, चांदी, नकदी और ब्रांडेड घड़ियाँ मिली। उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स के करीब दर्जनों बेनामी जायदादें खरीद रखी थी, जिनका रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ हसन रजा, लाहौर न्यूज़। स्मोक की अफरियत ने अपने पंजे मजबूती के साथ गाड़ने शुरू कर दिए हैं। स्मोक सीजन के आगाज पर ही लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आने लगा है। इंसदाद स्मोक के लिए हुकूमती सतह पर भी इकदामात का सिलसिला जारी है। 2016 की एक सुबह को जब अहले लाहौर सोकर उठे तो उन्हें शहर की फिजाएं एक अजीब सी धुंधलाहट में लिपटी हुई नजर आईं। बाहर निकलने पर आंखों में शदीद चुभन सी भी महसूस होने लगी। मालूम हुआ कि यह आलूदगी और धुंध के इश्तराक से बनने वाली स्मोक के बाइस है। आदाद शुमार बताते हैं कि उसके बाद आने वाले बरसों में सूरत हाल बिगड़ती चली गई। अगर सिर्फ गुज़श्ता 2 सालों का जायजा लिया जाए तो इंतहाई मोहतात अंदाजों के मुताबिक नवंबर 2023 में शहर का औसती QI 500 और नवंबर 2024 में औस एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 की सतह से भी तजावुज़ कर गया था। सूरत हाल इस साल भी कुछ ज्यादा बेहतर रहने का इम्कान नहीं है। हमारा डस्ट पोल्यूशन का बहुत बड़ा इशू है। इस इशू के ऊपर अब हुकूमत को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ासकर इंडस्ट्रियल एरिया, लाहौर का शुमाली लाहौर ले लें, वहाँ पे सड़क ही नहीं है। आप अगर रिंग रोड के साथ रावी की तरफ जाएं, जो इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा,
सेल्फ डेवलप इंडस्ट्रियल एरिया, तो वहाँ पे सड़कें नहीं हैं। जहाँ सड़कों के साथ शोल्डर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स बनाने की ज़रूरत है। इसी सूरत हाल को एक दूसरे जाविये से समझने की कोशिश करते हैं। क्या ऑस्टियर क्वालिटी इंडेक्स 300 की सतह से तजावुज कर जाए तो इसे इंतहाई खतरनाक गर्दाना जाता है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जब ये 1000 की सतह से तजावुज करता है तो क्या हालात पैदा होते होंगे। दूसरी तरफ हुक्काम पर उम्मीद हैं कि इस साल सूरत हाल बेहतर रहेगी। हमारी प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज़ हैं। एक है कि इसके साथ अभी फ़ाइट करना, लोगों को इसके मुज़र असरात से बचाना, और दूसरा लॉन्ग टर्म के अंदर इसके असरात को आहिस्ता आहिस्ता, इसके इम्पेक्ट को या इसकी इंटेंसिटी को कम करना। तो हम दोनों पे साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। एक साइड पे हम इंटरवेंशन के ज़रिए काम कर रहे हैं, दूसरी साइड पे हम प्रिवेंशन के ज़रिए काम कर रहे हैं। बट आई एश्योर यू कि स्मोक का लेवल हर साल हमारी इंटेंसिटी जो है पहले से कम हो रही है, और इंशाअल्लाह ताला 5 साल के स्पैन के अंदर आपको इसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नज़र आएगा। इंसदाद स्मोक की कार्रवाइयों में हुक्काम शहरियों से भी ताउन के मुतमन्नी नजर आते हैं। इंसदाद स्मोक के लिए हुकूमती सतह पर तो इक़दामात उठाए जाने का सिलसिला पूरा साल ही चलता रहा और इस वक्त भी चल रहा है, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि हुकूमती इक़दामात की कामयाबी अवामी ताउन से ही मशरूत होती है। सो बहुत ज़रूरी है कि इंसदाद स्मोक के लिए हम सब भी बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी न सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करें बल्कि अदा भी करें। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। अब भारत से आने वाली जहर आलूद हवाओं से लाहौर और कसूर की फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा AQI ख़तरनाक हद तक बढ़ गया। भारतीय शहरों से चलने वाली आलूदा हवाएं लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब करने लगीं। शहरों से चलने वाली आलूदा हवाएं लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब करने लगी। अमृतसर, फिरोजपुर, पटियाला, गुरदासपुर, सिंगरूर, बठिंडा, मोगा, बरनाला, मानसा और फरीदकोट से आने वाली हवाएं पाकिस्तानी शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी ला रही हैं। भारतीय पंजाब में सितंबर और अक्टूबर में 30 लाख हेक्टेयर रकबे पर चावल की कटाई होती है। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक ये भारतीय अजला पराली जलाने के हॉट स्पॉट्स हैं। भारत की तरफ 663 देहात पराली जलाने के अमल में नुमाया हिस्सा डालते हैं। लाहौर में मशरिक से मगरिब की तरफ हवा की रफ्तार तकरीबन 9 किलोमीटर फी घंटा मुतवक्के है। जहरीली हवा बच्चों, बुजुर्ग अफराद और सांस के मरीजों की सेहत के लिए खतरात का बाइस है। हुकूमत पंजाब के स्मोक के खिलाफ वसी पैमाने पर इकदाम, पानी का मुसलसल छिड़काव जारी। ज्यादा आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स कार्रवाई कर रही है। मुकामी सतह पर गाड़ियों और सनतों के धुएं समेत तामीराती धूल भी फ़ज़ाई मियार खराब करती है। लाहौर शहर के दाखिली रास्तों पर गुज़श्ता रात से सख्त पड़ताल और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पानी के छिड़काव जारी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, स्मोक से बचाव की कोशिशों के लिए हुकूमती मशीनरी पूरी तरह मुतहरिक है। स्मोक से निपटने के लिए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने एंटी स्मोक गन तैयार कर ली है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के ऑफिस में इफ्ताही तकरीब मुनक़िद हुई। वज़ीर हायर एजुकेशन राना सिकंदर हयात ने ख़ुसूसी शिरकत की। VC UET डॉक्टर शाहिद मुनीर ने ब्रीफिंग दी। अब स्मोक की खैर नहीं, UET के इंजीनियर्स ने लॉन्ग रेंज एंटी स्मोक गन तैयार कर ली। एंटी स्मोक गन की इफ्तिताही तकरीब सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के दफ्तर में मुनक़िद हुई। VC UET डॉक्टर शाहिद मुनीर, वज़ीर हायर एजुकेशन राना सिकंदर हयात, वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना था, स्मोक का मसला पंजाब हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त है। एंटी स्मोक गन UET की शानदार कामयाबी वाइस चांसलर और उनकी टीम शाबाश के मुस्तहिक है। पंजाब हुकूमत इस मशीन गन से भरपूर मुस्तफिद होगी। वाइस चांसलर UET डॉक्टर शाहिद मुनीर ने शुरा को बताया कि 40 मीटर रेंज वाली ये गन धूल और फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए इस्तेमाल होगी। ये जदीद डस्ट सप्रेशन सिस्टम तामीराती मकामात पर पैदा होने वाली गर्द को कंट्रोल करेगा। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राना सिकंदर हुसीफ, कैंपस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शाहिद इमरान और चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद फरहान की काविशों को सराहा। धुआं छोड़ती और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के गाड़ियों के खिलाफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां जारी हैं। यकमता 20 अक्टूबर लाहौर में हज़ारों गाड़ियों का मुआयना किया गया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से धुआं छोड़ने वाली 1000 से ज़ायद गाड़ियों का चालान किया जा गया, जबकि 500 से ज़ायद गाड़ियां बंद की गईं। इसी तरह बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली 550 से ज़ायद गाड़ियां भी बंद की गईं। ओवरलोडिंग में मुलविस 1600 से ज़ायद गाड़ियों के चालान किए गए। कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद किए गए। खिलाफ वर्जियों पर 73 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा, जबकि 63 ड्राइवर्स और मालिकान को गिरफ्तार किया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान ने 24 घंटे धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है।
فضائی آلودگی پر قابو پانے کے نام پر زیر زمین پانی ضائع کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اینٹی اسموک مہم کے دوران چھڑکاؤ کے لیے یہی پانی استعمال ہو رہا ہے۔ حکومتی پالیسی کے مطابق چھڑکاؤ کے لیے برساتی پانی محفوظ کر کے استعمال کیا جانا تھا۔ قابل زیر زمین پانی کو اینٹی اسموک مہم کے دوران بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اینٹی اسموک گاڑیاں، واسا اور دیگر محکموں کی ٹیمیں زیر زمین پانی سے اپنی ٹینکیاں بھر رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق روزانہ لاکھوں گیلن قیمتی پانی فضائی آلودگی کے نام پر سڑکوں پر بہایا جا رہا ہے۔ اینٹی اسموک گنز، سڑکوں کی دھلائی اور چھڑکاؤ کے لیے جو پانی استعمال ہو رہا ہے وہ پینے کے قابل زیر زمین ذخائر سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ شہر میں واٹر ٹیبل مسلسل نیچے جا رہا ہے، جبکہ قیمتی آبی وسائل غیر ضروری طور پر ضائع کیے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا تو لاہور کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ واسا اور دیگر اداروں کی خاموشی نے شہر کے آبی وسائل کے تحفظ پر سوالات کھڑے کر دیے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ چیئرمین سیڈ ایسوسی ایشن رانا سلمان محمود کا کہنا ہے کہ غلط پالیسیوں سے ملک کی زراعت کو تباہ کر دیا گیا۔ گندم کی بین الصوبائی نقل و حمل پابندی پر لگا کر سیڈ کمپنیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جبکہ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل کہتے ہیں کہ حکومت فوری اس اہم معاملے پر کارروائی کرے۔ لاہور چیمبر اور سیڈ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ چیئرمین سیڈ ایسوسی ایشن رانا سلمان محمود خان اور دیگر عہدیداران نے کہا کہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملکی زراعت کو تباہ کر دیا گیا۔ پنجاب کی سیڈ کمپنیاں پورے ملک کے لیے گندم کا سیڈ پیدا کرتی ہیں۔ گندم کی بین الصوبائی نقل و حمل پر پابندی لگا کر سیڈ کمپنیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ سیڈ فیڈرل سبجیکٹ ہے، صوبوں کے ساتھ اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ یہ سختی اور بے رحمی کے ساتھ یہ سلوک کر کے ان کو یہ اندازہ نہیں کہ اگر یہ بیج دوسرے صوبوں میں نہ گیا اور پنجاب میں بھی یہ بیج نہ گیا تو اس کا آئندہ آنے والی فصل جس کا ہم اب سے بحران کا شکار ہیں، ابھی سے گندم کے بحران کا شکار ہیں، تو یہ 24 کروڑ عوام کے ساتھ یا 25 کروڑ عوام کے ساتھ یہ کیا سلوک کرنے جا رہے ہیں کہ یہ اس گندم کی بوائی کو بھی روک رہے ہیں۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا حکومت فوری اس معاملے پر کارروائی کرے۔ سابق صدر ایف پی سی سی آئی میاں انجم نثار نے کہا اس مسئلے کا فوری حل تلاش کیا جائے تاکہ گندم کی بروقت کاشت کو یقینی بنایا جا سکے۔ گندم ہے، یہ ایک مین کراپ ہے اور اس کی اگر بیجائی صحیح ٹائم پہ نہ ہو سکی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غذائی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ تو کے پی کے اور بلوچستان میں اگر وقت پہ یہ بیج کی تحصیل ممکن نہ ہو سکی تو ہم ایک بہت بڑے غذائی بحران سے بھی تو چار ہو سکتے ہیں۔ ایک جینوئن ایشو ہے، اگر فیڈرل گورنمنٹ کوئی پابندی بین الصوبائی نقل و حرکت کی کوئی اپنا پابندی انہوں نے نہیں لگائی تو میرے خیال میں اس کو فالو کیا جانا چاہیے پنجاب لیول پر بھی، اور اگر یہ فیصلے ڈیلیڈ ہوں گے تو الٹیمیٹلی جو ییلڈ پہ نقصان ہوگا۔ پریس کانفرنس کے موقع پر سینئر نائب صدر لاہور چیمبر تنویر احمد شیخ اور ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین محمد زہیب کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ لاہور میں پاس پیڈا ایوارڈ کی تقریب، رہنما پیاب فاؤنڈر LBF الائنس عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں کہ چیمبر انتخابات میں مکمل تیاری کے ساتھ اتریں گے۔ میاں مصباح الرحمان کا کہنا ہے کہ ووٹوں میں دانستہ ہیرا پھیری کی گئی۔ محمد امجد چودھری کہتے ہیں کہ DGTO کے فیصلے نے ہمارے موقف کی تصدیق کر دی ہے۔ پاس پیڈا ایوارڈ تقسیم کرنے کی تقریب، پیاب فاؤنڈر LBF الائنس کے قائدین کی شرکت۔ سابق صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ نے تقریب میں کہا کہ لاہور چیمبر کے انتخابات کے حوالے سے بھرپور مہم چلائیں گے۔ چیئرمین فاؤنڈرز گروپ میاں مصباح الرحمان نے کہا کہ چیمبر کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ سپلٹ ووٹس پیاب فاؤنڈر LBF الائنس کو زیادہ پڑے لیکن پینل ووٹس کم پڑے۔ ایسا نہیں ہوتا، دانستہ ووٹوں میں ہیرا پھیری کی گئی۔ پہلا الیکشن ہے لاہور چیمبر آف کامرس میں کہ جس میں جو بیلٹ میں گروپ ووٹ کاؤنٹ کیا گیا تو ہم الیکشن ہار رہے ہیں، اور جب سپلٹ ووٹ کاؤنٹ کیا تو ہم 15 کی 30 کی 30 سیٹیں ہم جیت رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس بار ہم کسی قسم کی ریگنگ بھی نہیں ہونے دیں گے، اس چیز کو ہم اپنا بالکل دیکھیں گے کہ کسی قسم کی ریگنگ نہ ہو، کسی قسم، کیونکہ ایک بار ہمارے ساتھ ہو گیا تو ہم دوسری بار یہ ہونے نہیں دیں گے۔ چیئرمین الائنس میاں سہیل نثار نے کہا کہ چیمبر الیکشن میں بغیر مہر، بغیر دستخط ووٹ کاسٹ کیے گئے، ہمارے پاس مکمل ثبوت ہیں، جبکہ رہنما الائنس محمد امجد چودھری نے کہا کہ DGTO سے سزا ملنے کا مطلب ہے کہ ان سے غلطی ہوئی، ہم ہر پلیٹ فارم پر لڑیں گے۔ DGTO نے ہر وہ بات ایگری کر لی جو ہم کہہ رہے تھے۔ اس نے کہا جی انہوں نے 24,000 ووٹ بنایا، 24,400 ڈکلیئر کیا ہے، 10,400
जो साबित हो गया वहाँ पे। उन्होंने ये कहा कि पिछले DGTO का फैसला जिसकी वजह से हम वहाँ से उठ के आ गए थे गिनती के वक्त, वो फैसला उसने गलत किया था, वो फैसला इलीगल था। आप यकीन करें मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं बैलेट पेपर्स के जिनके ऊपर किसी सेक्रेटरी का किसी बंदे का साइन ही नहीं है। आज तक हिस्ट्री में मेरे ख्याल से इतना पैनल वोट नहीं पड़ा होगा। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ जेलसाजी कितनी हुई है। तकरीब में आबिद हमीद खान, वकार हुसैन भट्ट, नासिर हमीद खान, मुदस्सिर मसूद, तारिक मिसबा, मुजाहिद मकसूद भट्ट समेत बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। डेंगू मच्छर की अफजाइश में तेजी। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 51 मुसद्दका मरीज रिपोर्ट। लाहौर में डेंगू के 14 नए मरीज सामने आ गए। सूबे भर में डेंगू कन्फर्म मरीजों की मजमूई तादाद 2400। डेंगू के कन्फर्म मरीजों की मजमूई तादाद 2445 तक पहुँच गई। लाहौर में डेंगू के मुसद्दका मरीजों की तादाद 456 हो गई। शहर में डेंगू के मुश्तबा मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। डेंगू के बेशतर मरीज निजी हॉस्पिटल और क्लिनिक्स पर रिपोर्ट हो रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए शहरी SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। डेंगू सर्विलेंस को तेज और लार्वा को हंगामी बुनियादों पर तल्फ किया जा रहा है। सूबाई दारुल हुकूमत में ग्राम फरोशों का राज बरकरार। मार्केट में शिमला मिर्च 450, घिया कद्दू 220, अरवी 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। अंगूर 650, सेब 400, पपीता 350, मौसमी 280 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब हैं। मज़ीद तफसीलात जानते अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा। आज बिल्कुल आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी महकमे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो मजमूई तौर पर इजाफा किया गया। टमाटर है, तमाम सब्जियों की कीमतें सरकारी रेंज में बैकअप रखी गई है। टमाटर आज 10 रुपये महंगा करके सरकारी रेंज में 185 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। शाम मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर जो है 450 से 480 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जे का टमाटर जो है 350 से 400 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रहा है। लहसुन 410 रुपये सरकारी रेंज, जिसमें मार्केट में 600 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक 640 रुपये फ़ी किलो है, मार्केट में 850 रुपये फ़ी किलो तक अदरक की फरोख्त की जा रही है। और मौसमी सब्जियों की भी सूरत हाल यही है कि सरकारी रिलीजों के बरस महंगे दामों मार्केट में शहरियों को फरोख्त की जा रही है। आज जो फलों की सरकारी रिलीज जारी की गई उसमें 4 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें सेब काला कुल्लू 10 रुपये इजाफे के बाद 330 रुपये मुकर्रर किया गया। शाम मार्केट में सेब काला कुल्लू 400 से 450 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और दीगर 28 दिन की कीमतों में इजाफा हुआ। इसमें अंगूर शुगर खानी 20 रुपये महंगा करके 520 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट 600 से 650 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दुकानी फल 10 रुपये महंगा करके 170 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में दुकानी फल जो है 260 से 280 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। नाशपाती 10 रुपये महंगी करके 250 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट में नाशपाती जो है 350 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह तमाम सब्जियाँ और फल जो है वो मार्केट में सरकारी रेटों के बरस महंगे दामों पर फरोख्त की जा रही है, जिस पर शहरियों का कहना है कि रेलवे का इजरात तो किया जाता है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। महंगाई ने आवाम की नींदें उड़ा दी। लाल टमाटर ही जेब पर भारी पड़ गए। लाहौर मार्केट कमेटी की जानिब से टमाटर की कीमत 175 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, ताहम शहर में 400 रुपये से भी महंगा फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमतें हो गई। सरकारी रेट लिस्ट में अफसरान की वही सब अच्छा है की रिपोर्ट। रेट लिस्ट में दर्जा अव्वल टमाटर 175 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। मार्केट में 3rd क्लास या दर्जा सोम का टमाटर भी इतने में दस्तियाब नहीं। बाजार में अव्वल दर्जा टमाटर 450 रुपये और मिक्स 350 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। खरीदार टमाटर की होशरुबा कीमतों पर परेशान। कहते हैं इंतजामिया से टमाटर ही कंट्रोल नहीं हो पा रहा। रेट लिस्ट के बरअक्स टमाटर मार्केट में 3 गुना महंगा क्यों है? रेट लिस्ट में जो 175 है, ठीक है, और वैसे 400 साढ़े 400 रुपये बिक रहा है टमाटर। तो यार ये गरीब आवाम के साथ ज्यादती है। ये जो चेक एंड बैलेंस है ना, इस पर भी ज़रा थोड़ा सा गौर किया जाए, ठीक है। जो कंट्रोल जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा रेट लिस्ट पर कुछ और होते हैं और उस वैसे वो एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। ये टमाटर का जो कल रेट था ना, ये 400 रुपये था और 480 रुपये 1 किलो के थे। सिर्फ 4 या 5 टमाटर चढ़ते हैं। ये गरीबों के ऊपर इन्होंने बिल्कुल ही तबाही मचाई हुई है। 400 रुपये किलो ये बेच रहे हैं और किसी भी दुकान का एक रेट नहीं, कोई 400 बेच रहा है और मंडी में 450 और 500 चल रहा है। और देखें ये सूरत हाल। और टमाटर भी देखें
और टमाटर की सूरत देखें, ये देखें, ये 400 रुपये मिल रहा है। सब्जी मंडी के ज़राए का कहना है मकामी फसल नवंबर के पहले हफ्ते शुरू होने से ही टमाटर के दाम कंट्रोल होंगे। नवाब शाह और खैरपुर जैसे दूर दराज इलाकों से टमाटर आएगा तो महंगा ही फरोख्त होगा। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।